Hi guys, welcome back to another video and a very special video. So the new year has started and lots of the newer models are coming in. So this big box, this contains two new 1:18 scale cars by Kyosho. क्योशो बहुत बढ़िया ब्रांड है, उसकी मैंने अभी हाल में आप लोगों को दिखाई थी लाइट वाली कार, द निज्मो 400R विद द बेस जिसमें लाइट जलती थी. सो more models from that brand I'll show you very soon because this is a huge massive box. मैं ऐसे आपको दिखाता हूँ. This is the size of the box you can see and this has come straight from their warehouse and this contains two of their very premium ultra premium 1:18 scale cars. तो जल्दी ही उसको भी अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या आया है उसमें. अभी के लिए देखते हैं. यहाँ पे आज मैं आपको तीन, जो मेरा नया हॉल था मिनी जीटी का, उसमें से तीन बढ़िया मॉडल्स दिखाने वाला हूँ. हैव ट्राइड टू पुट एन इंटरेस्टिंग मिक्स टुगेदर सो दैट एवरीवन फील्स गुड अबाउट इट. क्योंकि जो मैंने पूछा था कि आप लोग कौन कौन सी उनमें से देखना चाहते हो, मेनी पीपल हैड आस्क्ड फॉर द सिविक एंड द लैम्बो, जो मैंने कल डाल दी थी. आज मैं सोच रहा हूँ आपको दिखाता हूँ. सबसे पहले तो ये लैरी चेन की जो GR86 है, दैट वन. Then this is the Nissan GTR. I don't even remember when was the last time I had unboxed a Nissan GTR by Mini GT. I've got a lot of them, a lot of the rarest of rare ones. I'll show it to you some other time. जैसे एक दो वीडियोस में मैं बोला भी हूँ, कुछ जो है उनकी, जैसे कि मैजिक पर्पल हो गई या फिर जो ब्लू वाली हो गई, तो मैजिक ग्रीन हो गई, एडवन हो गई, तो वो सब काफी आज के डेट में रेयर हो चुकी हैं. So this is a very good addition to my GTR collection. And over here we've got this is the BMW M3 Performance Touring Wagon. तो इससे पहले मेरे पास एक BMW की M4 रह चुकी है in this Alpine white color. तो सबसे पहले मैं इसी से शुरू करता हूं. I'll show you the BMW M4 and what a beautiful pair this has become with the wagon. So let's start with this and then slowly we'll move on to the other models. So first of all, we've got these two beautiful models. Both of these are BMWs and the best part about this is the new generation BMWs. This is the BMW M4 right now which I am rolling, and this is the BMW M3. So this is the new one which has come in this package and this is a little old. So now if you look at the front, both of them have got the massive new grille which the newer BMWs get. I'll probably do an angle like this so that you can see the details on the hood, the BMW logo and all of it. Bumper and all very nicely detailed. Then we come on this side. I'll probably have to show you side by side. This is the wagon. So you see the wagon gets these bronze wheels which are a good addition, and this one it gets these black wheels. So you let me know in the comments ki which is looking better, black or bronze. और बाकी फिर दोनों में हल्के रबराइज टाइप के आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं. And you get the BMW M striping on the side. Another thing to note over here is that the wagon has got 4 doors and the M4 has got 2 doors. Also, if you note at the top, यहाँ पे आप देखोगे कि wagon में जो roof है that is gloss black, you know, piano black kind of. और ये इसमें जो आपको roof मिलती है, इसमें आपको carbon fiber roof मिलती है. So this is a proper carbon fiber roof, textured. Then we come on to the rear now. At the rear, there are not too many differences in terms of detailing, of course because of the shape. इसमें आपको स्पॉइलर यहाँ पे देखने को मिलता है, इसमें आपको ऊपर स्पॉइलर मिलता है. Tail lamps and all are very well detailed and overall both of these are beautiful. As I said कि जितनी बार ऐसा होता है कि मेरे पास कोई मिनी जीटी आ रही है तो एक गाड़ी मेरे पास पहले से रहती है, एक दो गाड़ी पहले से रहती है और फिर नई वाली उससे मैच करके काफी सही रहता है. So this is also a similar situation. इन दोनों में से आपको कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, वैगन कैसी लग रही है, लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. बेस में इसका आपको दिखा देता हूं. बेस में इन दोनों ही का आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये बड़ी मजेदार चीज है कि इवन दो मिनी जीटी डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ डिटेलिंग इन अ लॉट ऑफ बेसेस, इन दोनों की ही बेसिस बहुत वेल डिटेल्ड है. दिस वन इज द ओल्ड वन, द BMW M4. तो इसको मैं साइड करता हूं और अभी जो M3 वैगन नई आई है उसका बेस आपको दिखाता हूं. ट्रूली इंप्रेसिव द लेवल ऑफ डिटेलिंग द बेस हैज and it's also pretty free rolling, so you can see that. Now I'll quickly come on to the next one, and the next one for today has got to be this because this is the Larry Chen GR86. तो लैरी चेन एक बहुत फेमस फोटोग्राफर है एंड ही हैज कोलैबोरेटेड विद अ लॉट ऑफ डाइकास्ट ब्रांड्स ऑल्सो. इनफैक्ट हॉट व्हील्स की भी इनकी गाड़ियां बनी हैं एंड एक 2 पैक बना था जिसमें कि आई थिंक R32 थी. एंड दैट वाज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम कि हॉट व्हील्स जनरली आर्ट डालता है अपने कवर पे. उस गाड़ी के कवर पे आर्ट नहीं, उनकी फोटोग्राफ लगी थी. सो दैट वाज, आई थिंक हॉट व्हील्स डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम.
So he has been doing some pretty cool collaborations. I think he's got a Supra also which he uses as his camera. तो Supra कैमरा का काम करती है. Is mounted a camera on the Supra और फिर वो जब रेसिंग में जाते हैं तो the car follows the other cars and takes footage. This is his HKS turbocharged GR86. So I'll quickly come on to the model itself. Roll करा के लाता हूँ. So you can see it's a pretty free rolling model. First of all, let's have a look from the side. एक जो इसका कलर है दैट इज मेटालिक ग्रे, डार्क ग्रे इन अ मेटालिक फिनिश विच लुक्स वेरी नाइस एंड द व्हील्स आर ब्यूटिफुल. ये जो कंट्रास्टिंग व्हाइट व्हील्स दिए गए हैं इसमें दैट लुक्स अमेजिंग. सिंस ही इज अ फोटोग्राफर, आप देखोगे ये जो EOS की ब्रांडिंग है डोर पे, बिकॉज यू नो आई थिंक ही प्रोबेबली यूजेस कैनन. तो कैनन का जो कैमरा रेंज आता है EOS. देन यहाँ पे आपको R3 भी लिखा हुआ है और भी बहुत सारे इसमें आपको स्पॉन्सर्स के स्टिकर्स देखने को मिलते हैं. इफ यू जूम इन राइट हियर यू कैन प्रोबेबली रीड इट. यहाँ पे पेंजोइल का स्टिकर है. देन वी कम ऑन टू द फ्रंट. इट्स अ ब्यूटिफुल फ्रंट. थोड़ा ये एंगल शायद आपको ज्यादा अच्छा रहे देखने को. यहाँ पे आप देखोगे हेडलैम्प्स की डिटेलिंग, उसमें आपको प्लास्टिक इंसर्ट दिए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है. फ्रंट में नीचे भी जो बम्पर वगैरह की डिटेलिंग है दैट इज वेरी नाइस. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ कोर्स आई विल प्रॉब्ली शो यू लाइक दिस इज द कार्बन हुड. कार्बन हुड मिलता है इसमें जिसमें काफी सारी ब्रांडिंग भी की हुई है एंड द हुड लुक्स वेरी नाइस. थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक ग्रे कार है, उसमें कार्बन हुड थोड़ा कैमोफ्लाज हो जा रहा है बट इट्स स्टिल रिकॉग्नाइजेबल. मिरर्स इसमें आपको रबराइज्ड से मिलते हैं. यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल स्टिल विद देम. The wing is very nicely detailed if you look at it. And then we come on to the rear. The rear is also very well detailed. काफी अच्छी डिटेलिंग की गई है रियर की भी, स्पेशली द एग्जॉस्ट, द टेल लैम्प्स, ऑल ऑफ इट यू कैन सी वेरी क्लियरली. One thing I will say is कि this car has got a lot of aero bits, spoilers, this and that. For example, these days I'm using these gloves to take these videos. The gloves, इसमें जो fine thread होते हैं, they keep latching on to some of the parts of this car. जैसे अगर मैं ऐसे करूंगा तो probably 9 out of 10 टाइम्स वो किसी चीज को कैच कर लेंगे. तो दिस इज गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेजाइल बिट्स, सो बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इट, स्पेशली इफ यू गॉट क्लॉथ ग्लव्स and otherwise also. But then we come on to probably what is like one of the most special models of today. And the interesting thing about this is कि it's a pretty late release of sorts, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है 593 और आप देखोगे कि इसके साथ के जो मैं आपको मॉडल्स दिखा रहा हूं ये दिस इज 776 एंड द लैरी चेन वन दिस इज 820. तो ये काफी दिनों बाद आपको ये मॉडल देखने को मिल रहा है एंड दिस इज द निसान मोटोकॉर्प GTR Nismo GT3. नंबर 23 है. 2018 FIA GT वर्ल्ड कप मकाऊ की गाड़ी है. एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई शो यू हाउ इट रोल्स. जैसे ये रोल काफी फ्रीली करती है. And after a long time when I unboxed this car, when it came out of the blister, जब मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा अनबॉक्सिंग की, there was a proper wow moment, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक इतनी खूबसूरत गाड़ी मिनी GT की GTR. मिनी GT does an amazing job with the Nissan GTR always. मिनी GTs की जो लैम्बोर्गिनीज हैं, बुगाटीज हैं और निसान GTRs हैं, these have to be my favorite. डिफेंडर ऑल्सो डेफिनेटली. तो 3-4 कास्टिंग होती है जो बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है कोई ब्रांड. आई थिंक हर ब्रांड का होता है कि कोई ब्रांड होता है जो खास तरीके की गाड़ियां बहुत ज्यादा अच्छी बनाता है. सो मिनी GT में GTR हैज ऑलवेज बीन इट्स स्पेशलिटी. साइड से जब आप देखोगे बॉडी का जो पेंट है, मेन जो इसका कलर है दैट इज व्हाइट, बट उसमें जो ये लिवरी है ग्रीन एंड रेड की, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल. It does not look as beautiful in pictures as it looks in real life, and this I am letting you know because even when I saw the picture, even when I saw the box पे भी आप इसका आर्ट देखोगे ना, it looks mid, but when you take it out of the box, I hope the camera can do justice. बहुत अच्छी लग रही है. Let's talk about the wheels. The wheels are very nice. Black काफी अच्छे से कंट्रास्ट करते हैं इसके व्हाइट कलर को. साइड में जो KCMG वगैरह की डिटेलिंग है, Matsuda was the driver's name, तो विंडो पे आप उसका नाम लिखा हुआ देख सकते हो along with the Japanese flag and the number 23. Then we come on to the front and the front detailing is just very nice. Although I will say कि इसका जो ग्रिल है थोड़ा मुझे अलग लग रहा है. Probably आदत हो गई है मुझे वो लिबर्टी वॉक्स और पैंडेम्स वाली GTR देखने के लिए, तो निज्मो थोड़ी अलग लग रही है. हुड की डिटेलिंग इसकी बहुत अच्छे से की गई है एंड ओवरऑल द फ्रंट इज ब्यूटिफुल. साइड ऑफ कोर्स इज वेरी ब्यूटीफुल एंड द टॉप इज ऑल्सो वेरी नाइस. टॉप से भी अगर आप इसको देखोगे ना, बहुत अच्छी डिटेलिंग की गई है. रूफ पे जो इसमें डिकैल्स वगैरह दिए गए हैं स्पॉन्सर्स वगैरह के, वो सब बहुत अच्छे हैं. एंड
इधर से स्पॉइलर भी अगर आप देखोगे ग्रीन और रेड का काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। द स्पॉइलर ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस। साइड में भी बहुत माइन्यूट डिटेलिंग की गई है स्पॉइलर के। विंडशील्ड पे भी, फ्रंट विंडशील्ड पे भी आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलते हैं और रियर विंडशील्ड पे आपको नंबर 23 देखने को मिलता है। एंड द रियर टेल लैंप्स, द आइकॉनिक टेल लैंप्स ऑफ द निसान GT-R, वेरी 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 वेल रेप्लिकेटेड। स्पेशली व्हाइट का रेड टेल लैंप्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से विजिबल भी है, विंग भी उसको हाइड नहीं कर रहा है। जो डिफ्यूजर वगैरह की डिटेलिंग है वो भी काफी अच्छे से की गई है। सो आई थिंक ऑफ ऑल द कार्स टुडे दिस वन हैज टू बी माय पर्सनल फेवरेट। बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड सिंस आई कलेक्ट GT-Rs, दिस इज अ वेरी वेलकम एडिशन टू माई कलेक्शन। सो दिस इज इट गाइज, शॉर्ट वीडियो। कैसा लगा आपको ये मिक्स? बिकॉज यू नो आई हैड टू पिक आउट अ फ्यू कार्स to show it to you and of course saving the best for the last। I think next जो वीडियो आने वाली है उसमें से दो जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग मॉडल्स होने वाले हैं, दे विल बी द Kuma लिबर्टी वॉक सिल्विया सुपर सिलुएट एंड द HKS काइदो हाउस वैगन। अभी के लिए ये आपको कैसी लगी, ये गाड़ियां कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, इसमें से आपकी फेवरेट कौन सी है? And stay tuned also because we'll come out with a video very soon for the Kyosho 1:18। Kyosho की वो proper metal models हैं with all parts opening, so that should also be very exciting। Thank you।